हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के बहुत ही फेमस डायलॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, जो पुराना मूवी है दानवीर शूरकर्ण। डायलॉग है आचार्य देवा, जो बहुत ही फेमस है। इसमें हमारे लेजेंडरी और सीनियर टी रामाराव जी हैं, और नंदमूरी बालकृष्ण, नंदमूरी हरिकृष्ण, शारदा, सरोजा देवी जी और बहुत सारे लोग हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है खुद एनटीआर जी ने, नंदमूरी तारका रामाराव जी ने। म्यूज़िक बाय पेंडियाला नागेश्वर राव। बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैंने सुना हुआ है। मूवी तो मैंने देखा नहीं है, बट इस पर्टिकुलर सीन को मैंने देखा हुआ है। एंड मैंने सीनियर एनटीआर जी के डायलॉग को जूनियर एनटीआर जी बोलते हुए देखा था। एक पता नहीं, कहीं आई थिंक एक ऑडियो फंक्शन में, वो भी बहुत पुराना वीडियो है, कुछ साल पहले उन्होंने एक ऑडियो फंक्शन में शायद वो वीडियो देखा था मैंने, जब जूनियर एनटीआर जी इस डायलॉग को रिपीट करते हैं। सो बहुत ही फेमस डायलॉग है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ఆగాగు ఆచార్యదేవ ఏమంటివి జాతి నెపమున సూత సుతుర కింద నిలువ అర్హత లేదందువా? ఎంత మాట ఇది ఛాత్ర పరీక్ష గాని క్షత్రియ పరీక్ష కాదే, కాదు కాకూడదు, ఇది కుల పరీక్ష ఎందువా? నీ తండ్రి భరద్వాజుని జననమెట్టిది, అతి జుగుప్సాకరమైన నీ సంభవం ఎట్టిది. మట్టి కుండలో పుట్టితివి కదా, నీది ఏ కులము? ఇంత ఏల అస్మత్ పితామహుడు కురుకుల వృద్ధుడైన ఈ శాంతనవుడు శివసముద్రుల భార్యవు గంగా గర్భమున జనించలేదా? ఈయనదే కులము. నాతో చెప్పించువేమయ్యా, మా వంశమునకు మూల పురుషుడైన వశిష్ఠుడు దేవవేశ్యకు ఊర్వశీ పుత్రుడు కాడా? అతడు పంచమజాతి కన్య అయిన అరుంధతి ఎందు శక్తిని, ఆ శక్తి చండాళంగన ఎందు పరాశరుని, ఆ పరాశరుడు పల్లెపొడిచైన మత్స్యగంధి ఎందు మా తాత వ్యాసుని, ఆ వ్యాసుడి విధవరాండ్రైన మా పితామహి అంబికతో మా తండ్రిని, పితామహి అంబాలికతో మా పిరతండ్రి పాండురాజును, మా ఇంటి దాసితో ధర్మ నిర్మాణ చనుడని మీచే కీర్తించబడుతున్న ఈ విదురదేవుని కనలేదా? సందర్భావసరములను బట్టి క్షేత్రబీజ ప్రాధాన్యములతో సంకరమైన మా కురువంశము ఏనాడో కులహీనమైనది కాగా నేడు కులము కులము అను వ్యర్థవాదమెందులకు. నాయనా సుయోధన, ఏరులా పారులా బ్రహ్మఋషుల జననములు మనము విచారించదగినవి కాదు. ఇది నీవన్నట్లు ముమ్మాటికి క్షాత్ర పరీక్షయే. క్షాత్రమున్న వారెల్లరూ క్షత్రియులే, వారిలో రాజ్యమున్న వారే రాజులు. అట్టి ఈ కురురాజ పరిషత్తులో పాల్గొనుటకు అర్హులు. ఓహో, రాచరికమా అర్హతను నిర్ణయించున్నది. No one can beat him in this kinds of dialogues. సామ్రాజ్యములో సస్యశ్యామలమై సంపద విరామమై వెలుగొందు అంగరాజ్యములకు ఇప్పుడే ఈతని మూర్ధాభిషిక్తిని గావించుతున్నాను. సోదరా దుశ్శాసన, అనర్ఘనవరత్న శక్తి కిరీటమును వేగము గదెము. మామా గాంధార సార్వభౌమ, చురిచిన మణిమయ మండిత సువర్ణ సింహాసనమును తెప్పింపము. పరిజనులారా, పుణ్యభాగీరథీ నదీతో అందుకొనుడు. కళ్యాణ భక్తులారా, మంగళ సూర్యారవములు సుస్వరముగా మ్రోగనిండు. వంది మాగధులారా, కర్ణ మహారాజును కైవారములు గావింపుడు. పుణ్యాంగరులారా, ఈ రాధాసుతులకు పాలభాగమున కస్తూరి తిలకమును తీర్చిదిద్ది బహుజన సుకృత పరిపాక సమలబ్ధ సహజ కవచ కైశ వైఢూర్య ప్రభారించోడికి వాంఛలు చలవేగా వీరగంధము విద్యరాల్పుడు. సకల మహాజన సమక్షమున పండిత పరిషన్ మధ్యమున సర్వదా సర్వథా శతథ సహస్రథ ఈ కులకలక మహాపైక్యలమును శాశ్వతముగా ప్రక్షాళన గావించెదను. मुझे और डायलॉग ना ये और प्रक्षाళన गाविंचुदा, ये दोनों वर्ड्स छोड़ के दूसरे वर्ड्स कुछ भी नहीं आते यार, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जब सुन रही थी ना, तब हाँ मैंने सुना है, मुझे समझ में आ रहा है ऐसा लगता है। बट जब बोलने की बात आती है ना, ब्लैंक। लाइक जो भी डायलॉग इस तरह के, और ये यू हैव टू बी माइंडफुल दैट ये पूरा एक सिंगल शॉट में लिया गया है। लाइक डायलॉग डिलीवरी, उनका वॉइस बेस हो जाए, द वे ही सेज, उनके मैनरिज्म्स, नो वन कैन बीट हिम यार, वाओ। एंड सीनियर एनटीआर जी के जो भी टैलेंट है, आई थिंक जूनियर एनटीआर जी में भी आ गए हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ लाइक सो गुड एट रिमेंबरिंग लाइन्स, सो गुड एट डिलीवरिंग लाइन्स। और मैंने उनको देखा था इस डायलॉग को बोलते हुए, एज आई सेड ऑडियो फंक्शन में देखा था उनको। आई डोंट रिमेंबर विच ऑडियो फंक्शन, बट मैंने भी एक वीडियो देखा था उनका, कि ये डायलॉग बोलते हैं सब लोग अपने फैंस को खुश करने के लिए।
एंड एनी डाउट्स बोल के शायद कुछ बोलते हैं लास्ट में पता नहीं, बट अच्छा था यार, बहुत ही उसी इंटेंसिटी से उन्होंने बोला है। बट सीनियर एनटीआर जी तो लाइक ही इज समथिंग एल्स, लाइक फर्स्ट पर्सन आई कैन से, लाइक मुझे पता नहीं, जब मूवीज़ के बारे में जानते भी नहीं है वो क्या है कैसे हैं, बट ही इज़ बीन सिंस दोज डेज। लाइक मूवीज़ के बारे में अगर जब भी कोई टॉपिक आती है तो आई ऑलवेज थिंक ऑफ सीनियर एनटीआर जी। लाइक मेरे लिए जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे मूवीज़ मतलब एनटीआर जी से ही शुरू है, उन्होंने शुरू किया ऐसा लगता था। एंड ही हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पाइवटल रोल इन इंडियन सिनेमा, कि उनकी वजह से जिस तरह से लाइक तेलुगु सिनेमा बोल के नहीं बोलूँगी, इंडियन सिनेमा ही बोलूँगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नाम है हमारे इंडिया में। लाइक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो आर्ट को उन्होंने दिया है, वाओ, ही इज़ डन अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब इन ब्रिंगिंग सिनेमा। लाइक कैसा हो सकता है, एक्टिंग कैसे होती है, वो एक स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट किया है उन्होंने। एंड हीज मूवीज़ जो भी हैं लाइक स्टोरीज के वाइज, लाइक उनका एक अलग ही मैनरिज्म्स होते हैं, अलग ही डायलॉग डिलीवरी काइंड ऑफ स्टाइल होता है उनका। एंड ही लाइक नोबडी कैन बीट हिम यार, ही इज़ अनबीटेबल। बट अभी वो हमारे साथ नहीं है, बहुत साल पहले उनका निधन हो चुका है, बट फिर भी अभी भी उनको याद किया जाता है कि उन्होंने इतने अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनको अभी भी याद किया जाता है। एंड वाह, उनका इसमें आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ हिज great performances, one of his great performances, not the great but one of his great performances। बट ये बहुत ज़्यादा याद किया जाता है जब भी उनके डायलॉग्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये डायलॉग तो पहले नंबर पे आता है, बिकॉज I don't know why, but somewhere I feel that this one is so strong, like वो एनर्जी हो जाए बोलने का, या फिर एक शॉट में जो बड़ा शॉट जो लिया है उन्होंने, एक ही शॉट में उन्होंने पूरा किया है। एंड द वे ही इज सर्कलिंग अराउंड, जो भी वो सभा है ना, सभा से जब एक एक के साथ वो जब डायलॉग बोलते बोलते चलते आ रहे हैं, वाह, दैट वाज सो नाइस यार। एंड आई हैव टू से आजकल के जो भी एक्टर्स होते हैं उनको मिनिमम 3-4 तो शॉट इजीली हो जाते, कितना भी हार्ड ट्राई करें हो जाता है उनको। जूनियर एनटीआर आई गेस उनको एक्सेप्शन दे सकते हैं, क्योंकि उनको याद आती है डायलॉग्स जल्दी, वन टेक आर्टिस्ट बोलते हैं इसलिए उनको। बट सीनियर एनटीआर जी को कोई बीट नहीं कर सकता है इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं। एंड उनका जो भी प्योर लैंग्वेज जो बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तेलुगु प्योर लैंग्वेज हो जाए, उसमें कुछ संस्कृत वर्ड्स भी जो आ जाते हैं, लाइक सुनते ऐसा लगता है कि वाह यार क्या लैंग्वेज है, क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या डायलेक्ट, ऐसा लगता है। बहुत सुनते सुनते ही ऐसा लगता है कि वी जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू हिज वॉइस। उनका वॉइस बिल्कुल बहुत अच्छा है, इस तरह के सीरियस डायलॉग्स बोलते हैं। एंड जो सिचुएशन चल रहा था ना वहाँ आचार्य वर्या बोल के जिस तरह से उनको बोलते हैं, लाइक बेसिकली वो हिपोक्रेसी को दिखा रहे थे कि तुम उसको ऐसा बोल रहे हो तो तुम्हारा क्या है। जस्ट व्हेनेवर यू आर शोइंग अ फिंगर टू समवन, जस्ट बी माइंडफुल दैट 3 fingers विल बी शोइंग टुवर्ड्स यू। सो जब भी किसी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हो, सोच लो कि तुम खुद अपने आप को पॉइंट आउट कर रहे हो विथ 3 fingers को, कैसे करते हैं ना। सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो देम, कि तुम मेरे दोस्त को कौन को ऐसे बोल सकते हो, तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, तुम क्यों एक कास्ट रीजन ये सब कुछ ज़्यादा सोचते हो, हमारे पास ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से डायलॉग बोल रहे थे अच्छा लगा यार, लाइक ही स्टैंडिंग अप फॉर हिज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एंड ही इज़ ऑल्सो शोइंग देयर हिपोक्रेसी कि तुम अपने लिए तो कुछ नहीं बोल सकते, दूसरों को क्यों ऐसा टारगेट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो बोल के। बहुत ही अच्छा सीन था। सिर्फ डायलॉग के बारे में पूछा गया था तो शॉर्ट वीडियो ही चूज़ करना पड़ा मुझे। बट देखेंगे अगर इस तरह के लाइक मोस्टली पुराने मूवीज़ जो भी होते हैं वो जल्दी ब्लॉक हो जाती है, म्यूज़िक हो जाए, हर चीज़ में कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट आ भी गया तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ अपलोड करने की, बट ब्लॉक हो जाती है, वो प्रॉब्लम होता है पुराने मूवीज़ पे। सो आई जस्ट चोज दिस पर्टिकुलर डायलॉग के बारे में पूछा गया, सिर्फ उस डायलॉग को रखा मैंने, पूरा सीन को नहीं रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट ब्लॉक। बिकॉज अगर मैं इतना करने के बावजूद भी ब्लॉक हो जाती है तो देयर वोंट बी एनी मीनिंग फॉर दैट वीडियो, राइट। सो देखेंगे अगर ये वीडियो
अच्छी तरह से आप तक रीच हो पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इसी मूवी से कोई और पावरफुल सीन पे रिएक्ट करेंगे। लेट मी नो विच सीन यू वांट टू सी फ्रॉम दिस मूवी। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक ये सीन पूरा सीन चाहिए इस डायलॉग का या फिर कोई और सीन चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर लिख भेज दीजिएगा। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है इस डायलॉग डिलीवरी अपार्ट फ्रॉम सीनियर एनटीआर जी और जूनियर एनटीआर जी और कौन अच्छी तरह से डिलीवर कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए बाय।